So we're going to solve a numerical problem. This is example 5-1. Consider the continuous floor beam ABCD in figure 5-4. This is figure 5-4. This is the continuous floor beam ABCD. Use the ACI moment coefficients to find the design moments at the critical sections for one exterior span, maybe this one, and the interior span. So for this exterior span and for this interior span, for these two spans, you have to calculate design moments at the critical sections. Then repeat these calculations for the floor beam EFGH in the same figure. This floor beam EFGH. The difference between these two floor beams is ABCD is supported by columns directly, and this floor beam is resting on these girders. What additional information is given? Assume the floor slab has a total thickness of 6 inch and assume the floor beams have a total depth of 24 inch and a web width of 12 inch. This is your trial dimension. Assume the columns are 18 inch by 18 inch, again a trial dimension. Finally, assume the floor to be designed for a live load of 60 psf and a superimposed dead load of 20 psf. Superimposed dead load means the load on the slab, excluding the weight of the slab and the beam floor system excluded, the weight imposed on the not live load, superimposed dead load. ठीक है, सेल्फ वेट, स्लैब का अपना सेल्फ वेट, बीम्स का अपना सेल्फ वेट निकाल के जो ऊपर डेड लोड है फिनिशिंग का बेसिकली, दैट इज नहीं, फर्नीचर इज लाइव लोड. कभी आप यहां रख रहे हैं, कभी आप वहां रख रहे हैं. ओके, सो first we will do this ABCD floor beam and then we will discuss it for EFGH. Now for this ABCD floor beam, the procedure is that before embarking on the application of ACI moment coefficient method, you must first check whether the limitations of that method are satisfied or not. So you will start checking the limitations. So what were the limitations that we studied? Number one, there must be at least 2 or more spans. So we have got more than 2 spans. We have got 3 continuous spans. Continuous spans are more than 3, more than 2, so fine, 2 or more than 2, that's okay. What next? Loads are uniformly distributed. That's true. There is no concentrated load. And then the members are prismatic. Yes, all members are prismatic. Next, we need to check the ratio of the longer to the shorter span. The longer span is 28 feet long, the shorter is 24 feet long. So you can just check their ratio. 28 over 24. How much? 1.17, which is less than 1.2. So this is also okay. Lastly, we need to check the ratio of live load to dead load. This should be equal to or lesser than 3. Now live load is directly known at this stage. It is given to be 60 psf, unaffected live load. Live load is 60 psf. How about dead load? Dead load consists of 2 parts in this case. One is superimposed dead load and the other is self weight of the slab. Now superimposed dead load is 20 psf. This is given in the statement. And self weight of the slab, we know the thickness of slab, correct? So now this is 6 inch, so when I divide it by 12, this becomes feet. 6 by 12 foot into 150 pound
per foot cube. So you get 75 pound per square foot, 75 psf. So the total dead load, excluding the projected weight of the projected beam, but just a rough estimate, that makes 20 plus 75, 95 psf. Now the ratio of live over dead would be 60 over 95. So of course this is less than 3, so this is also fine. So fifth limit, all the limitations of ACI coefficient method are valid over here, so you can apply it. Okay, next. First of all, we will calculate live load reductions. We will calculate live load reductions. So we will be considering, as we had discussed, live load reductions depend upon tributary area. It depends upon influence area, and influence line depends upon tributary area. So it means for all the critical sections, we need to know their tributary area. So starting with exterior span, AB, ये आप अपने पास रजिस्टर में लाजमी नोट कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये जो मैं नोटबुक बना रहा हूँ ये आपको अलाउड नहीं होगा, आपका अपना रजिस्टर आपको अलाउड होगा अगर मैं ओपन रजिस्टर आपको देता हूँ एग्जाम, ठीक है। जो अभी आप बना रहे हैं ना, ये आप चीट शीट बना रहे हैं, ये आपको आपके साथ एग्जाम के हाल के अंदर आपके साथ जाएगा ये मटेरियल, ठीक है। तो इतना कुछ लिख लीजिएगा, आपको एग्जाम में समझ आएगा मैंने क्या लिखा। एक्सटीरियर स्पैन ए बी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस स्पैन में हमने एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, एक हमने करना है इसमें एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट, और दूसरा हमने करना है इसी स्पैन में मिड स्पैन पॉजिटिव मोमेंट, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के लिए एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट और एक्सटीरियर स्पैन में मिड स्पैन पॉजिटिव मोमेंट, यानी ये वाली जगह ए सपोर्ट पे नेगेटिव मोमेंट, एक्सटीरियर सपोर्ट पे ये वाला निकालने के लिए, और ए बी स्पैन में जो मिड स्पैन पे पॉजिटिव मोमेंट है, दोनों को निकालने के लिए एक ही पैटर्न लोडिंग होती है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसके लिए जो दोनों केसेस में जो ट्रिब्यूटरी एरिया होगा, विड्थ तो यही रहेगी, लेंथ ये रहेगी ए बी स्पैन के बराबर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सो इन बोथ केसेस AT would be equal to 12 फीट ये विड्थ है इसकी, और 28 फीट इसकी लेंथ है, 336 फुट स्क्वायर। अब ट्रिब्यूटरी एरिया आ गया, तो इसका इन्फ्लुएंस एरिया फैक्टर हमने डिस्कस किया था 2 टाइम्स AT, सो दिस विल बिकम 2 into 336, 672 फुट स्क्वायर, ठीक है। नाउ लाइव लोड रिडक्शन, so we will apply this formula, right? Only copy हुआ,
अब इस फार्मूले को देखिएगा, हमारा जो ए आई है इन्फ्लुएंस एरिया वो 672 फुट स्क्वायर है, तो वो यहां फॉल कर रहा है। तो आप इस फार्मूले में ए आई की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे एल आर, रिड्यूस लाइव लोड। सो एल आर would be equal to L naught 0.25 plus 15 over under root of 672। अच्छा, ये L naught कितना है? 60 psf, ये गिवन है आपको। So what is your answer now? 49.7 psf, ठीक है। ये फार्मूला गवर्न कर रहा है। रिड्यूस लाइव लोड आपने निकाल लिया, यानी क्या मतलब इस रिड्यूस लाइव निकाल लेने का? जब आप इस एक्सटीरियर स्पैन ए बी में ये दो मोमेंट्स, डिजाइन मोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे, यानी यहां वाला डिजाइन मोमेंट और यहां वाला डिजाइन मोमेंट, तो आप जो लाइव लोड यूज करेंगे, रिड्यूस लाइव लोड, वो ये जो अभी कैलकुलेट की वैल्यू ये यूज करेंगे, ठीक। यानी अभी ये वैल्यू आगे जाके हमने यूज करनी है, लेकिन हम पहले सारों के लिए ना रिड्यूस लाइव लोड्स निकाल के फिर आगे प्रोसेस करने जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं इंटीरियर स्पैन बीसी के लिए, ठीक। इस इंटीरियर स्पैन बीसी के अंदर आपने यहां पे जो मिड स्पैन पॉजिटिव मोमेंट है, ये इसके लिए ट्रिब्यूटरी एरिया कैलकुलेट करना है। सो नेक्स्ट इज इंटीरियर स्पैन बीसी। यहां पे आपका मोमेंट एक ही कैलकुलेट करने आप जा रहे हैं, दैट इज एम पॉजिटिव इंटीरियर, ठीक हो गया। हाँ, नेगेटिव की तरफ आते हैं अभी, ठीक है। ये हम इस तरह से ग्रुपिंग कर रहे हैं कि जिन मोमेंट्स के लिए एक ही ट्रिब्यूटरी एरिया बनता है उनको इकट्ठा कर रहे हैं, समझ रहे आप। ऊपर मैंने दो को इकट्ठा किया, कौन कौन से दो को? इन दो को, क्योंकि इनके लिए पैटर्न लोडिंग यानी ट्रिब्यूटरी एरिया बेसिकली इनका एक बन रहा था, इसलिए। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर सिंपल क्या हो जाएगा, एटी सिर्फ चेंज हो जाएगा। इसका एटी कितना होगा? इसके लिए आप ये वाला स्पैन लोड होगा, इसका हो जाएगा 12 इंटू 24, 12 इंटू 24, ठीक है। दिस इज 24। अब ये लोड होगा ना, ऑलराइट। सो ट्रिब्यूटरी एरिया would be again 12 feet wide, but this time length is 24 feet. So you will get 576 foot square. Then influence area is 2 times 80. So, अच्छा, हाँ, you're right. ये itself जो है AI है। So let me write the 80, ये 288 बन गया और ये 2 into 288 बन के 576 foot square बन गया। Next you will do live load reduction. Again look at the formula 576 के लिए, again बीच वाला फार्मूला ये। So करेंगे, लेकिन उसका चूंकि ट्रिब्यूटरी एरिया डिफरेंट है, जैसे स्पैन लोडिंग होगी, तो इसलिए हमने उसको अलग से डाल दिया। करना नेक्स्ट हम उसको करने लगे, बी वाले सपोर्ट।
सो अब अगेन उसी फार्मूले में आप पुट करेंगे वैल्यू L नॉट इंटू 0.25 प्लस 15 इंटू अंडर रूट ऑफ AI. ठीक है, that becomes 52.5 PSF. वैल्यूज पुट करके AI की वैल्यू यहां पुट कर लेंगे 576, ये L नॉट वही 60 PSF है जी। थोड़ा सा बच्चा बोलिएगा पंखे पीछे। दोनों में इक्वल टू, इसलिए कि 3600 अगर है तो आपको दोनों को सेम आंसर मिलेगा। आप यहाँ 3600 पुट करें, आपको आंसर मिलेगा 0.5 L नॉट, और इसके लिए तो है ही 0.5 L नॉट ना, सेम आंसर आएगा। इवन ये 400 के लिए भी यही है, आप 400 पुट करें, ये तो है ही L नॉट, यहाँ भी 400 पुट करेंगे, आपका आंसर L नॉट के बराबर आएगा। ठीक है, मतलब ये किसी कोड में लिखा हुआ नहीं, मैंने उन कोड्स की जो स्टेटमेंट्स है उनको इस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म किया है ताकि मैथमेटिकली थोड़ा सा इजी हो जाता है, प्रोग्राम करना इजी हो जाता है, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है इसको। ओके, सो वी हैव डन दिस टू, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अच्छा, इस केस में मैंने आपको कहा था ना 6 सेक्शंस होते हैं जो कि 5 में रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंटीग्रेट सपोर्ट के दोनों साइड्स पे जो कंजर्वेटिव लार्जर वैल्यू है वो हम लेते हैं। 5 सेक्शन से अब अभी तक हमने कितने सेक्शंस लिए? 3 जगहों पे। अच्छा, अगर इसको जरा देखिएगा, ये तो एक्सटीरियर हो गया, अब ये भी एक्सटीरियर है, जो रिजल्ट यहां निकला है वही रिजल्ट यहां अप्लाई होगा। अच्छा, फिर इसका हमने कर लिया, इसका भी कर लिया। अब आप कहेंगे एक हमें ये वाली सपोर्ट, एक ये वाली सपोर्ट। अब अगर आप देखें, ये सपोर्ट भी फर्स्ट इंटीरियर कहलाएगी, ये भी फर्स्ट इंटीरियर कहलाएगी, तो इसके अंदर वो टिपिकल इंटीरियर जिसको हम बोलते हैं वो है ही नहीं असल में। दोनों सपोर्ट्स फर्स्ट इंटीरियर है, स्पैन है छोटा ना, 3 स्पैन हैं। अगर और ज्यादा स्पैन होते तो फिर हमें एक टिपिकल इंटीरियर की भी कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो हमें जो 5 होते हैं आमतौर पे, इस केस में हमारे पास 4 क्रिटिकल सेक्शंस बन जाएंगे। ठीक हो गया? सो अब हमारे पास एक रह गया है, दैट इज नेगेटिव मोमेंट एट बी। हाँ हाँ, क्या दो के लिए? सॉरी, अभी मोमेंट्स नहीं निकाले, अभी सिर्फ उन सेक्शंस के लिए रिड्यूस्ड लाइव लोड निकाला है, और वो अलग अलग हम इसलिए निकाल रहे हैं कि हम उनके ट्रिब्यूटरी एरियाज का जो इफेक्ट है लाइव लोड रिडक्शन के ऊपर, उसको कंसिडर करना चाह रहे हैं। मैं बताता हूं, ये जो वैल्यू है ये 672 के बाद ये जो रिड्यूस करके लिखी है ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ये दोनों केसेस में यूज होगी। जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तब भी यही वैल्यू होगी, ये कैलकुलेट करेंगे तब भी यही वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के लिए जो पैटर्न लोडिंग है वो एक ही है, तो ट्रिब्यूटरी एरिया भी एक ही हुआ, ट्रिब्यूटरी एरिया एक हुआ तो इन्फ्लुएंस एरिया भी एक ही, तो इन्फ्लुएंस एरिया की एक ही है तो फिर इसका मतलब लाइव लोड रिडक्शन भी एक ही होगी। ठीक है? अगर आप अलग अलग करें, क्या करेंगे आप? इसके लिए एक दफा करेंगे, फिर ये इसी के लिए दोबारा एग्जैक्ट यही चीजें आप लिख रहे होंगे, 2 दफा लिखने के बजाय हमने कहा यही कैलकुलेशन दोनों के लिए वैलिड है, दोनों के लिए यूज होंगी। अच्छा, नेक्स्ट मैं इसको भी हाईलाइट कर लेता हूं। अच्छा, नेगेटिव मोमेंट एट बी, इसमें क्या होगा?
ट्रिब्यूटरी एरिया इस तरफ आइडेंटिफाई करने वाले, बाकी तो प्रोसीजर आपको समझ आ गया। अब इसका ट्रिब्यूटरी एरिया, इसके लिए क्या होगा, एडजेसेंट स्पैन विल बी लोडेड, तो विड्थ उतनी है, लेंथ कितनी हो जाएगी 28 प्लस 24। सो दिस इज नाउ, अब मैं लिख लेता हूं यहां पे, ये हम बात कर रहे हैं नेगेटिव, ठीक है, बस मैं इसके साथ लिख लेता हूं फर्स्ट इंटीरियर, ठीक है, बी जो है वो हमारा फर्स्ट इंटीरियर है। अच्छा, प्रोसेस उसी तरह से होगा, 80 12 फीट इंटू 24 प्लस 28 फीट, आंसर खुद लिख लें। AI is equal to 2 times 80, ठीक है, ये खुद कंप्लीट कर लें। क्या आंसर्स बनेंगे, 624 फुट स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा डबल इसका, 1248। ओके, रिड्यूस, अब ये 1248 है, अगेन इक्वेशन को देखें, सेकंड वाला सॉल्व करता है अगेन इसमें, सो आप खुद कैलकुलेट करके देखें कितना आंसर बन रहा है, LR ये फार्मूले जब आप खुद भी सॉल्व करें ना, मतलब घर में या असाइनमेंट की, तो आप बार बार लिखें इस फार्मूले को, फिर वैल्यू डालें, ताकि आपको थोड़ा सा फार्मूला याद होना शुरू हो जाए। इतना, सो लेट्स टेक इट 40.5 PSF, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट, हमारे पास रिड्यूस लाइव लोड्स आ गए हैं, अब हम टोटल फैक्टर्ड लोड्स निकालेंगे। टोटल फैक्टर्ड लोड्स, जी पॉइंट सी के लिए वही, वैसे उसने हमें मांगा भी दो स्पैन का था, एक एक्सटीरियर का और इंटीरियर का, लेकिन बात यह है कि जो बी का रिजल्ट आएगा वही सी के लिए वैलिड होगा। क्या चीज चेंज आएगी, ट्रिब्यूटरी एरिया, इस तरफ और इस तरफ ये भी 24 प्लस 28 बनता है, इस तरफ और इस तरफ ये भी 24 प्लस 28 बनता है। आल्दो हमें कहा भी उसने खाली दो स्पैन का है, लेकिन राइट नाउ ये ऐसे ही बनेगा, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट इज टोटल फैक्टर्ड लोड्स। अब इसमें वही इनपुट यूज होगा, डाटा जो आपने अभी फाइनल आंसर्स निकाले, मसलन पहले हम कर रहे हैं अगेन उसी तरह से, एक्सटीरियर सपोर्ट, एक्सटीरियर स्पैन ए बी के लिए, ठीक है, एक्सटीरियर स्पैन ए बी, और उसमें हम दो मोमेंट्स, मतलब एक्सटीरियर स्पैन जिसके अंदर हमने एम नेगेटिव एक्सटीरियर और एम पॉजिटिव एक्सटीरियर को कैलकुलेट करना है, उसके लिए ये हम करने जा रहे हैं अभी। अब इसका WL का मतलब है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इन पाउंड पर फुट, ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू QL reduced into tributary width। अब इसके लिए QL reduced कितना निकाला था बताएं, यहां लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमने जब कर रहे थे लाइव लोड रिडक्शन एक्सटीरियर स्पैन ए बी, इन दोनों सेक्शंस के लिए हमने ये निकाला था 49.7 PSF, ये अब हम यहां पे यूज करेंगे।
पाउंड पर फुट स्क्वायर पीएसएफ मल्टीप्लाइड बाय ट्रिब्यूटरी विड्थ कितनी है 12 फीट. सो यू विल गेट 596 पाउंड पर फुट. किप पर फुट में बन जाएगा 0.596 किप पर फुट. ठीक हो गया. अब ये अनफेक्टेड है इस टाइम. अच्छा नेक्स्ट डेड लोड. अच्छा डेड लोड के तो ना हम डेड लोड में कोई रिडक्शन करते हैं ना हम डेड लोड का कोई ट्रिब्यूटरी एरिया को चक्कर है इसमें. डेड लोड हर वक्त हर जगह लगा रहता है. सो डेड लोड जो अभी हम इस स्टेप में कर रहे हैं अगले स्टेप्स में भी यही यूज करेंगे. ठीक है. सो डेड लोड्स के लिए डेड लोड्स के लिए हमारे पास एक स्लैब से लोड आ रहा है. स्लैब का अपना सेल्फ वेट जो 75 पीएसएफ अभी कैलकुलेट किया प्लस ऊपर से 20 पीएसएफ का सुपर इम्पोज डेड लोड है. तीसरा हमारे पास वेट है बीम का अपना सेल्फ वेट फ्लोर बीम का अपना सेल्फ वेट. ठीक. ये तीन तरह के सेल्फ वेट्स एड अप होंगे. लेकिन पहले हम जो एरिया लोड्स हैं स्लैब का 75 पीएसएफ एरिया लोड है 20 पीएसएफ सुपर इम्पोज लोड वो भी एरिया लोड है. पहले हम एरिया लोड्स को डील करके क्योंकि उनको ट्रिब्यूटरी विड्थ से मल्टीप्लाई करके हम यूडीएल में कन्वर्ट करेंगे और बीम का जो लोड होगा वो तो ऑलरेडी हमारे पास यूडीएल में ही होगा. सो लेट्स वर्क आउट द एरिया लोडिंग्स फर्स्ट. क्यू जो हमारे पास स्लैब से आ रहा है इन सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब दैट वुड बी कैलकुलेटेड. पहले भी कैलकुलेट कर लिया था लेकिन लेट्स डू इट अगेन. 6 इंच डिवाइडेड बाय 12 इंच per foot multiplied by density of RCC 150 pound per foot cube and this makes 75 pound per square foot. Next we will calculate अभी जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं ये सारे स्पैन्स के लिए वैलिड है. इसलिए डेड लोड अभी मैं करूंगा मेरा ख्याल ज्यादा क्लियर हो जाएगा. थोड़ा सा टाइम दीजिएगा बस. अभी मैं कर रहा हूं सिर्फ आप देखती जाइएगा आगे मैं यूज करूंगा क्लियर हो जाएगा. सुपर इम्पोज डेड लोड वो है 20 पीएसएफ. अब हम ले रहे हैं क्यू स्लैब प्लस सुपर इम्पोज डेड लोड. ये हो जाएगा 75 प्लस 20 पीएसएफ 95 पीएसएफ. ठीक हो गया. और अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू लाइन लोड. हाँ सुपर इम्पोज यानी फिनिशिंग का और दूसरी तीसरी चीजों का 95 पाउंड पर फुट स्क्वायर इनटू ट्रिब्यूटरी विड्थ. ठीक है. मैं लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि किस चीज की वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूं. सो 95 पाउंड पर फुट स्क्वायर इनटू 12 फीट. दिस मेक्स 1140 पाउंड पर फुट. ठीक हो गया. किप्स में इसको लिख लें 1.14 किप पर फुट. ये क्या चीज आ गई W फ्रॉम स्लैब प्लस सुपर इम्पोज डेड लोड. ठीक हो गया. अब हमने बीम का सेल्फ वेट इंक्लूड करना है. बीम का सेल्फ वेट इंक्लूड करने के लिए जरा इस फिगर को देखिएगा. देखिए जब हमने स्लैब का लोड इंक्लूड किया था ना 75 पीएसएफ. ठीक है. ये जब कैलकुलेट किया था तो स्लैब की थिकनेस कितनी ली थी 6 इंच. और वो जो थिकनेस है अगर हम इसको जरा फिगर के अंदर देखें तो वो ये है 6 इंच.
अब बीम जो है उसकी टोटल हाइट यहां से शुरू होके यहां तक है, तो ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है डायरेक्टली अबव द बीम, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमने ऑलरेडी कंसीडर किया हुआ है जब हम स्लैब की सेल्फ वेट कंसीडर कर रहे थे, इसीलिए सिर्फ उतनी हाइट कंसीडर की जाएगी जो प्रोजेक्ट कर रही है स्लैब से नीचे। तो अब हम बीम का कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ उसकी वेब का, W ऑफ दी बीम वेब। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके अगर क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस को देखें, टोटल डेप्थ वाज 24 इंच, जिसमें से 6 इंच वो फ्लैंज की थिकनेस है, ये स्लैब की थिकनेस है, और वेब जो उसकी जो डेप्थ है दैट इज 18 इंच। सो लेट मी राइट इट डाउन, 24 इंच माइनस 6 इंच, 18 इंच बन जाएगा ये इन। अच्छा, ये इसकी हो गई डेप्थ वाली डायमेंशन। विड्थ इसकी कितनी है, 12 इंच, मैं 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अब हमारे पास क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया इंच स्क्वायर में। इसको हम फुट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, वन 144 से डिवाइड कर लेंगे। अब ये फुट स्क्वायर में एरिया बन गया। इस एरिया को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे बाय डेंसिटी ऑफ आरसीसी 150 पाउंड पर फुट क्यूब से, तो ये फुट स्क्वायर में एरिया है, यहां ये फुट क्यूब है, तो दिस विल बिकम पाउंड पर फुट। तो ये डायरेक्टली यूडीएल आ जाएगा बीम के ऊपर, ये आंसर बन जाएगा 225 पाउंड पर फुट। किप में ये बन जाएगा 0.225 किप पर फुट, ठीक है। इससे पहले हमने ये जो डेड लोड है ये वाला, ये लिया था फ्रॉम स्लैब एंड सुपर इम्पोज डेड लोड कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद ट्रिब्यूटरी विड्थ। अब हम इनको एड अप कर सकते हैं, ये भी किप पर फुट में है, ये ऊपर वाला, और ये भी किप पर फुट में है। नाउ दिस कैन बी एडेड, सो टोटल डेड लोड वुड बी W coming from slab plus superimposed dead load plus W of the beam web. So this becomes 1.14 plus 0.225 kip per foot, and this becomes equal to 1.37 kip per foot. ये अभी अनफेक्टेड लोड है हमारे पास, डेड लोड अनफेक्टेड। Now, since we are using ACI moment coefficients, so we need not consider any separate detailed structural analysis where we will be like, we are not going to perform a detailed structural analysis, so we can just we can calculate the affected load, dead and live combined, affected load. So we are going to calculate that affected load. Live load से जरा देखिएगा हमारे पास कितना आ रहा था किप पर फुट में, 0.596। ये कैसे आया था, रिड्यूस लाइव लोड जो पीएसएफ में था उसको ट्रिब्यूटरी विड्थ से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये लाइव लोड किप पर फुट में आया। टोटल डेड लोड हमारे पास किप पर फुट में ये आया। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई फैक्टर्स ऑन देम। WU विल बी, अच्छा देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आमतौर पर जो स्लैब के लिए इफ लोड्स होते हैं, यानी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, WU विल बी लार्जर ऑफ नंबर 1। आमतौर पर ये जो पहला वाला लिख रहा हूं ये गवर्न करता है, लेकिन यू शुड ऑल्सो चेक द अदर वन, 1.2 डेड प्लस 1.6 लाइव, एंड सेकेंड इज
1.4 टाइम्स डेड। ठीक है, ये लोड कॉम्बिनेशन में से जो लार्जर वैल्यू होगी वो आपने यूज करनी है। ओके, अगर ये आ रहा है आपका आंसर, अब देखिएगा कितना बनेगा 1.2, डेड कितना है 1.37 किप पर फुट, और 1.6 WL कितना है 0.596। Okay, so this becomes 2.60 kip per foot। दूसरा आंसर क्या बनता है? $1.92 kip per foot। ठीक है, सो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, सो दिस गवर्न्स। So now we have calculated that WU is equal to 2.60 kip per foot। वो ओके नहीं होगा, क्यों? इसको देखिएगा, अनफेक्टेड लोड, ये लाइव है और ये डेड है। कंडीशन ये है कि लाइव लोड को इतना बड़ा ना हो कि 3 गुना डेड लोड से बढ़ जाए। यहां तो लाइव लोड है ही उससे छोटा। ठीक हो गया? अच्छा, सो ये आपके पास आ गया WU। अब ये जो WU आपने यूज करना है, दिस वुड बी यूज्ड फॉर, जिसके लिए किया है ये और दिस, इन दो मोमेंट्स के लिए। फॉर अदर्स यू नीड टू कैलकुलेट, वो आसान होगा इसलिए कि वहां पे सिर्फ लाइव लोड का फर्क होगा, डेड लोड तो वही रहेगा। ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। अगला सिंपल हो जाएगा, मिड स्पैन मतलब कि मिड स्पैन के बजाय आप ऐसे लिख लें, जिसके अंदर हम एक ही मोमेंट या BC, दिस इज BC। M पॉजिटिव BC। ठीक है, इसके लिए ये अभी कैलकुलेट इसको नहीं करने जा रहे, लेकिन इसके लिए यूज होना है इस लोडिंग में। ठीक है, ओके, सो if you recall, we had calculated reduced live load for this BC span, which was 52.5 PSF, different from 49.7 PSF which we used earlier. So 52.5 PSF is reduced live load for this case. So we will calculate WL by using again QL reduced multiplied by tributary width. So that value is 52.5 PSF into 12 feet. This becomes 630 pound per foot, or you can say 0.63 kip per foot। ठीक है, अब डेड लोड दोबारा से कैलकुलेट नहीं करेंगे। डेड लोड जो ऊपर निकाला था, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू,
ये वैल्यू ही यूज करेंगे आप दोबारा, ठीक है। 1.37 स्लैब की थिकनेस एक ही होती है और हाईली अनप्रैक्टिकल होगा कि स्लैब की थिकनेस डिफरेंट। हाँ हाँ, अगर आपने चूज, अभी असल में ये आपने खुद इनिशियल डायमेंशंस लिए, अगर आपने चूज की हैं, लेकिन नॉर्मली हम स्टार्ट इस तरह नहीं करते कि डिफरेंट, अगर डिफरेंट है तो फिर हाँ ठीक है, फिर डिफरेंट। ओके, सो we have now we are going to calculate total effective load with a sorry WU। अब ये सिंपल होगा 1.2 डेड, वही 1.37 जो अभी आपको हाईलाइट करके दिखाया है, ठीक है, और लाइव अभी कैलकुलेट कर लिया। दिस बिकम्स 2.65 kip per foot, ठीक हो गया। Next we will calculate for negative moment at B. So ठीक है, ये हमने यूज करना है इसके लिए, और ये फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट है। ये जो लोड कैलकुलेट करेंगे ये इस पर्पस के लिए यूज होगा। अगेन इफ यू कैन रिकॉल, ये उसका वही रह जाएगा डेड 1.37 किप पर फुट, और लाइव जो है दैट वी विल पिक फ्रॉम रेलेवेंट, और जस्ट बिफोर दैट यू नीड टू we need to first calculate WL for this case, WL, which was again QL reduced multiplied by 12 feet. QL reduced कितना था इसका 40.5, so 40.5 PSF into 12 feet, you get 486 pound per foot, 0.486 kip per foot. So you will use this value over here. This becomes 2.42 kip per foot. ठीक है, ठीक, ये आ गया, और ऊपर हमारा आंसर ये आया था। लेट मी डू द सेम फॉर दिस ऑल्सो। ठीक है, और इससे ऊपर हमने ये निकाला था। अब मैं इन सबको रेड में सर्कल कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ये हमने इनको यूज करेंगे। ये मैंने यहां भी खैर किया हुआ है इसको, ठीक है। सो अब आपके पास देखें फार्मूले में क्या था, कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय WU इंटू LN स्क्वायर। WU कैलकुलेट करने में ये सारा टाइम लगा। LN जो है इफेक्टिव स्पैन, वो सिंपली अब कैलकुलेट कर लेंगे वो। सो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं डिजाइन मोमेंट्स। ठीक है, इस प्रॉब्लम की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप थोड़ा सा अच्छा इसको लिंक कर पाएंगे। आप समझ शायद आपको आ जाए, लेकिन पूरी तरह आप इसको लिंक तभी कर पाएंगे जब फुल प्रैक्टिस करेंगे। सो AB स्पैन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से
ये बीम है ना हमारा, इस जगह से ए पे जो नेगेटिव मोमेंट है यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब जरा देखिएगा हमारे केस में, अगर मैं आपको स्टेबल पे लेके चलूं, हमारे केस में दिस कंटिन्यूस एंड इज इंटीग्रल विद सपोर्ट एंड सपोर्ट इज अ कॉलम। कॉलम है ना यहां पे, यहां पे। तो हमारे केस में ये वाला टेबल, ये वाला फिगर अप्लाई होगी, आखिरी वाली। अब यहां पे फैक्टर कितना लिखा हुआ है, -1/60। बस ये फैक्टर आपने यहां से पिक कर लेना है, ठीक है। मैं आपकी आसानी के लिए इसको नोटबुक पे साथ लेके जाता हूं और वहां पे मैं इसको इंसर्कल कर लेता हूं ताकि आपको याद रहे कि ये मैंने कहां से उठाया है। आपकी आसानी के लिए मैं ऊपर वाली फिगर को भी यहां पे कॉपी कर रहा हूं। सो this is what you are designing, and since it's a column, so you end up with this figure. So we have picked this. So before that, let me calculate ln for this case. ln for AB effective length would be equal to, look at this span, यहां पे एक कॉलम है, दूसरा यहां पे भी एक कॉलम है, तो इफेक्टिव स्पैन कितना हो जाएगा। कॉलम की डायमेंशन हमारे पास 18 इंच बाय 18 इंच है, ये अगर यानी 1.5 फुट है, 1.5 फीट, ठीक है। तो 9 इंच यहां से और 9 इंच यहां से कॉलम, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी डायमेंशन सेंटर टू सेंटर में से। 28 फीट सेंटर टू सेंटर ऑफ द कॉलम्स है, तो एज टू एज ऑफ द कॉलम अगर देखना चाहें तो ये 9 इस तरफ से, 9 दूसरी तरफ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, यानी 18 इंच सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 28 फीट से। समझ आ गई आप सबको। सो दिस वुड बी 28 फीट माइनस, एक सेकेंड जी जी मैं करता हूं। ये जो बीम है, ये जो हमारे पास पहले डायमेंशंस हैं, दोज आर यहां से लेके यहां तक, ये हमें रिक्वायर्ड है और हमें पता है डायमेंशंस जो गिवन है वो ये डायमेंशंस पता है, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। चलो मैं फ्री हैंड स्केच कर लेता हूं, इससे लेके यहां तक ये हमें पता है। ये है हमारा 28 फीट जो आपको यहां नजर आ रहा है, ठीक है। और ये आपको चाहिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, ये जो डायमेंशन है कॉलम की, ये टोटल 18 इंच है, ठीक है। ये भी 18 इंच है, इसको बना ले, ये आपको काम आएगा। इसका मतलब ये जो डायमेंशन है यहां से लेके यहां तक, ये कितनी है, दिस इज 9 इंचेस। सिमिलरली this is 9 inches. So we are saying 28 feet is center to center, and this is in fact at 9 इंच प्लस 9 इंच सब्ट्रैक्ट करना था, तो मैंने उसको 18 इंच सब्ट्रैक्ट किया। 18 इंच फुटों में से इंच तो नहीं निकाल सकता था, फुटों में से फुट निकालने होंगे ना, 28 फुट में से 1.5 फुट निकाला, 18 बाय 12, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा नहीं कुछ हो सकता, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं। सो दिस बिकम्स हाउ मच, 26.5 फीट। अब ये हमारा इफेक्टिव स्पैन यूज होगा फॉर कैलकुलेटिंग डिजाइन मोमेंट एट दिस सपोर्ट एट ए। सो वी वुड बी राइटिंग इट लाइक दिस, mu at
A, this is a negative moment, equal to, हमारा जनरल फार्मूला क्या था, CM इंटू WU ln स्क्वायर. अब CM हमने निकाला -1/16, ठीक है. और मल्टीप्लाई कर देंगे WU से. अब WU जरा देखिएगा, WU हमने ये कैलकुलेट किया था, जरा ऊपर से देखिएगा, मैं आपको समझा दूं. ठीक है, ये जो हमने कैलकुलेशन की थी, ये इसलिए की थी कि आगे हमने इस मोमेंट को कैलकुलेट करने जा रहे हैं ना, तो इस मोमेंट की कैलकुलेशन के लिए लोड हमने ये निकाला हुआ है, ये 2.60 किप पर फुट. So 2.60 kip per foot multiplied by ln का square 26.5 square. So, minus how much? -1. ये मैंने ठीक लिखा है, ये ठीक लिखा है. क्या यूनिट्स होंगे? Kip foot. All right, so one part is over. One moment, critical moment has been calculated. Next, positive moment in this location. ठीक है, यहां पे पॉजिटिव मोमेंट, उसके लिए हमने दो चीजें देखनी है. अब अगेन फार्मूला यही रहेगा, पहले तो कोफिशिएंट उठाना है. कोफिशिएंट इज 1/14. ठीक हो गया, नजर आ गया, ये वाला आ गया आपका 1/14. MU positive in AB span is equal to 1/14. इसका भी वही WU है, रिमेंबर 2.60 किप पर फुट इनटू वही इसका भी ln यूज होगा. So this becomes 130. ये भी हो गया. Next we move to BC span, mid span moment of BC span. So चलिए बस अभी इसी तरह MBC MUBC in, ठीक हो गया. इसके लिए एक चीज डिफरेंट हो जाएगी. अब ln for BC is different. ठीक है जी, this is 24 feet. ठीक हो गया. BC यहां पे मोमेंट निकाल रहा हूं अभी, यहां पे. So इसका ln हो जाएगा 24 माइनस 1.5 feet, यानी so this was 22.5 feet. Alright, so M positive, MU positive in BC span would be. Now what about the coefficient? We are over here 1/16. ठीक है, so 1/16, this is here. ठीक है जी. into इसका WU भी अलग होगा. So let's go to that. आप चाहें तो इनको यहां पे पहले से ही ऐसे कर सकते हैं, WU for BC, या मोमेंट भी लिख सकते हैं for
BC पॉजिटिव, यहाँ पे यूज होने ना इस लोड में, ठीक है। मतलब ऊपर हेडिंग दी हुई है आपको पता है, लेकिन फाइनल आंसर आपको यहाँ से भी आप डायरेक्टली ले सकते हैं। ओके, सो वी हैव क्या वैल्यू थी यार? हाँ 3.65 2.65, ऑलराइट 2.65 per foot into 22.5 foot square. This becomes 83.8 foot. ठीक हो गया? Now, finally, negative moment at face of support B. यानी ये जो B सपोर्ट है, इस जगह पे आल्दो है तो दो अलग फेसेस, एक ये वाला फेस ए बी की तरफ, एक दूसरा BC की तरफ। लेकिन हमने जैसे पहले बात कर ली थी कि हम चूंकि लार्जर के लिए डिजाइन करेंगे और दोनों का जो है वो WU एक ही रहेगा, दोनों का LN, दोनों का यानी दोनों केस में हमने एवरेज यूज करना है 28 to 24 का। सिर्फ कोफिशिएंट का फर्क होगा, जो कोफिशिएंट बड़ा होगा वो मोमेंट भी बड़ा होगा। सो इस केस में -1/9 और -1/10 और -1/11। सो ये हमारा -1/10 और -1/11 भी ले लें तो -1/10 इज बिगर, -7/11 इज स्मॉलर। तो ये अंदर ये वाला जो है ना बाहर वाली साइड इसकी, इस फेस वाला, हाँ नेगेटिव साइन लिखना है नहीं, उसके हिसाब से नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी, इफेक्टिव लेंथ एवरेज ऑफ ए बी एंड बी सी, एवरेज सपोर्ट के लिए एवरेज। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वी आर फाइंडिंग M negative at B, MU negative at B, and for that we first need to look at LN average of LN AB and LN LN BC। so ये हो जाएगा 26.5 कर दो, 26.5 plus 22.5 divided by 2, 24.5। So MU would be मैं करता जाऊं तब तक, मैं करता रहूं तब तक, आप बाद में नोट कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं कर, हाँ समझ आ गई। सो MU वुड बी -1/10 into, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट 2.42 कहां से आ रहा है? नीचे फाइंड किया हुआ था, ठीक है, 24.5 feet। so you get your answer -145 foot। Thank you very much। So this was MU at B and of course this is negative, ठीक है। so ये था ABCD फ्लोर बीम के लिए क्रिटिकल सेक्शंस के ऊपर मोमेंट्स निकालना है। आपको शुरू वाली लास्ट वीक की शुरू वाली डिस्कशन याद है ना? हमने कहा MU पहले निकालना सीखेंगे, उस MU को एज इनपुट यूज करेंगे फॉर डिजाइन। सेक्शन को ऐसा चूज करेंगे जिसका फाई MN इस MU से बड़ा हो, बहुत बड़ा ना हो ताकि इकोनॉमिकल भी रहे, लेकिन जस्ट बड़ा हो, ठीक है। तो EFGH का आपने खुद करना है, मैं सिर्फ आपको डिफरेंसेस, मेरा ख्याल है डिफरेंसेस भी आप समझ चुके हैं। एक डिफरेंस तो होगा टेबल्स का, टेबल आपका ये वाला हो जाएगा जहां स्पेंड्रल गर्डर आपका डिस्कंटिन्यूअस एंड पे सपोर्ट हो। दूसरा फर्क क्या होगा?
एल एन जिसमें आप कैलकुलेट कर रहे थे ना, यहाँ तो कॉलम्स थे हमारे केस में पहले, तो कॉलम वाली डायमेंशन 18 और 18 यानी 9 और 9 सब्ट्रैक्ट हो रही थी। यहाँ अब क्या है, नीचे गर्डर्स है, जरा इमेजिन कीजिएगा ये इसको आप डिजाइन कर रहे हैं, अब इसके नीचे ये गर्डर्स हैं, गर्डर्स का सपोर्ट। अब इस गर्डर की विड्थ और इस गर्डर की विड्थ आपको पता होनी चाहिए, पता नहीं कितनी गिवन है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। दैट इज 12 इंच, एज्यूमिंग इट इज 12 इंच, तो 12 इंच का मतलब है 6 इंच इस तरफ 6 इंच उस तरफ से, तो 1 फुट आपका कम हो जाएगा, ठीक हो गया, एक ये डिफरेंस। और बाकी आई थिंक देयर इज नो चेंज। या द रेस्ट इज सेम प्रोसीजर। अच्छा, ये हमने यूज किए एसीआई मोमेंट कोफिशिएंट्स, जैसे हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर ये वैलिड ना हो तो फिर हमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस मैं आपको पढ़ा तो नहीं रहा कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस कैसे करते हैं, आप पहले भी पढ़ चुके और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर भी आप वही पर चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि आप लोग एनालिसिस का इनपुट डेटा कैसे लेना है, ठीक। सिर्फ ये हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑनेस्टली, बड़ा लाइक वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक। एक बात ये समझ लें, अगर लिमिटेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है एसीआई कोफिशिएंट्स मेथड की, तो फिर तो आपको लाजमी स्ट्रक्चरल एनालिसिस खुद करना पड़ेगा। अगर सेटिस्फाई हो भी रही है कोफिशिएंट्स, तब भी जाहिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस तो आप हर वक्त कर सकते हैं, हर केस में कर सकते हैं, वो एक यूनिवर्सल चीज है, वो हर जगह वैलिड है। लेकिन अगर वैलिड कंडीशंस वैलिड हैं, लिमिटेशंस वैलिड है उसकी, तो फिर आपके पास चॉइस है। आप जो कोफिशिएंट से आंसर आते हैं वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव आते हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस जब आप खुद एग्जैक्ट कर रहे होंगे तो फिर आपके पास ज्यादा एग्जैक्ट आंसर आएंगे, एक्यूरेट आंसर्स आएंगे। इसको समझने के लिए पहले आप ये देखिएगा कि वो एनालिसिस कैसे, मतलब एक 10 स्टोरी की बिल्डिंग है, ठीक, उसके अंदर एक फ्लोर बीम जा रहा है, कंटिन्यूस फ्लोर बीम। अब उसका एनालिसिस करना है, तो बिल्डिंग 10 स्टोरी की है, आपने वो फ्लोर बीम को डिजाइन करना है, लाइक इसको पहले एनालिसिस करना है। तो अब एनालिसिस कैसे किया जाएगा? क्या आप 10 स्टोरी की पूरी बिल्डिंग को एनालिसिस करके उस फाइनल उसके रिजल्ट्स लेंगे फ्लोर बीम के लिए? कोड हमें अलाउ करता है कि हमारे पास, मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूं, कोड हमें यह अलाउ करता है कि अगर हमारे पास एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मैं अब इसकी एलिवेशन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इसकी बात मैं कर रहा था जो मैं आपको अभी बोर्ड पे जो ड्रॉ की है ना, वो ये इसकी मैं बात कर रहा हूं। दिस इज परमिसिबल एनालिसिस मॉडल फॉर कंटिन्यूअस बीम सब्जेक्टेड टू, और ये भी याद रखिएगा ग्रेविटी लोडिंग अगर खाली है, अगर ग्रेविटी लोडिंग के अलावा लेटरल लोडिंग भी है ना, फिर हम स्टोरी टू स्टोरी सेपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये होता है कि एक स्टोरी का लोड दूसरी स्टोरी में जा रहा होता है, फिर हम उस तरह से नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर ग्रेविटी लोडिंग है तो फिर ये एनालिसिस आपका परमिटेड है, फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं बीम्स और वन वे स्लैब्स के लिए। तो इस तरह का आपने मॉडल एल ए और एल बी का मतलब है अबव और बिलो जो लेंथ है कॉलम की, और ये नीचे से फिक्स्ड, और यहां आपने एक जिसको कहते हैं अलामती तौर पे एक सपोर्ट डाल देनी है, रोलर इधर डाल दें या इधर डाल दें, एक वर्टिकल रोलर सपोर्ट, ठीक है, जस्ट टू मेक इट लुक अ स्टेबल फ्रेम, ठीक है। आल्दो लोडिंग तो हॉरिजॉन्टल आप ग्रेविटी लोडिंग ही लगा रहे हैं ना। ऑलराइट, सो मैं आपको ये बात समझा रहा था, हाथ से करते हुए तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि मेरा एज ऑफ द बीम के ऊपर, यानी यहाँ पे, ये देखिएगा इसको जरा, मसलन ये मैं चलो इसको क्लिप कर लेता हूँ, वहां पे ले जाता हूँ। ये लेट्स से बीम का स्पैन है जिसके अंदर ये जो शेडेड नजर आ रहा है, इस जगह पे कॉलम के साथ वो इन कांटेक्ट है, इधर भी और इधर भी, या गर्डर जो नीचे उसके सपोर्ट है जिसके साथ भी है। अच्छा, अब अगर आप देखें ये उसका नहीं, सारा नहीं, सॉरी,
मैं आपको समझा रहा हूं, इस तरह से है ये, यानी कॉलम जो है उसका हाफ पार्ट यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, ठीक है, दूसरा पार्ट उसका इधर होगा सपोर्ट का, ठीक है, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है ना सेंटर टू सेंटर है। ये जो शेडेड ड्रॉ किया गया है ना, ये इस स्पैन का पार्ट होगा ना, दूसरे वाली साइड का दूसरी बीम का पार्ट बनेगा, हाफ इधर से हाफ इधर से। अच्छा, ये जो रीजन इसको हमने शेड किया हुआ है, यहाँ पे हमने कहा बीम ने यहाँ पे फेल नहीं होना, लिहाजा यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू बड़ी है भी, तो हम इसके लिए नहीं डिजाइन करेंगे, हम इस एज के ऊपर डिजाइन करेंगे यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे। अच्छा, अगर आपने मैन्युअली कैलकुलेट किया है तो आपके पास जब आप करते हैं ना ये एनालिसिस, बोर्ड है मेरे पास, ये जब आप इस तरह का एनालिसिस करते हैं ना बीम्स में, मैं यहाँ पे चलो फिक्स सपोर्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई रोलर, यहाँ पे फर्दर लेट्स से कोई रोलर, जब आप एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहे होते हैं तो आप जब ऑर्डिनेट शो करते हैं यहाँ पे, ये आप सेंटर पॉइंट के ऊपर ऑर्डिनेट ये वाला शो कर रहे होते हैं ये, ठीक है, यानी इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपके पास आ रहा होता है एट सपोर्ट, जिसको हम कहते हैं ना, जब मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ ना, ये जो मैंने ड्रॉ किया ये मैंने तकरीबन इसके सेंटर के करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है आपके पास। अच्छा, अब आपके पास डायरेक्टली जो एनालिसिस के रिजल्ट है वो शायद यहाँ के लिए आए हैं। अब आपने यहाँ के लिए अगर मोमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, या मसलन यहाँ के लिए आपके पास रिजल्ट है, ठीक है, ये जो जिसको एम नोड कहा है ना, ये बेसिकली नोड्स का वर्ड आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग अभी जरा ज्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे, वैसे भी हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट मेथड्स कुछ को, स्लोप डिफ्लेक्शन और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। नोड्स का मतलब एक मेंबर जो दो एंड्स हैं उसके, उनको हम नोड्स कह रहे हैं। ओके, सो इन नोड आई और नोड जे ये सेंटर टू सेंटर है इनके, ठीक है, इनके दरमियान डिस्टेंस ये एल है और ये एल एन है। आपको मोमेंट यहाँ पे चाहिए, ये वैल्यू इस फेस के ऊपर, ये यहाँ पे आ गया, ये वाला नोड यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यू पता है मोमेंट की। यहाँ पे अगर आपको मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या चीज आपको रिक्वायर्ड होगी, एनालिसिस के अंदर आपको मोमेंट भी आ रहा होगा, शेयर भी आ रहा होगा, ये शेयर भी आपको पता होगा। अब आपको ये शेयर पता है तो फेस के ऊपर भी, क्योंकि बीच में कोई लोडिंग नहीं लग रही, तो शेयर चेंज यहां तक नहीं होगा, तो ये वी फेस विल बी इक्वल टू वी नोड, सेंटर टू सेंटर वाले के इक्वल हो जाएगा ये। अच्छा, एम फेस जो है वो क्या होगा, दैट वुड बी इक्वल टू एम नोड माइनस वी नोड इंटू एक्स आई। यहां पे मोमेंट थोड़ा कम होगा ना, जैसे पहले बात की थी, कितना कम होगा, इस शेयर को आप इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसको एक्स आई से रिप्रेजेंट किया है, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब मैं सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन होता है रिजिड एंड जोन्स का, ठीक, किस सॉफ्टवेयर में हो सकते हैं ना भी हो, लेकिन मोस्टली में होता है। उसमें क्या फायदा होता है, अगर मैं एक मॉडल बना रहा हूं और उस मॉडल में मैंने ये बीम में बना रहा हूं, इसके मैंने अगर रिजिड एंड जोन्स दे दिए उनकी डायमेंशन, जैसे मसलन अगर रिजिड एंड जोन की डायमेंशन मैंने देनी हो तो मैं कैसे दूंगा, मसलन 18 इंच वाला कॉलम एज्यूम कर लेते हैं, इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके ये 9 इंच है, ये भी 9 इंच है, तो मैं इसको रिजिड एंड जोन की डायमेंशन दे सकता हूं। लेट मी चेक कि मुझे 9 इंच पूरी देनी है या फिर 18 इंच की देनी पड़ेगी, जस्ट अ मिनट में चेक कर लूं, हाफ ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। उसका क्या फायदा होगा, मुझे सॉफ्टवेयर सेंटर के ऊपर रिजल्ट नहीं देगा, जहां रिजिड जोन है वहां रिजल्ट नहीं देगा मोमेंट, इसी एज के ऊपर ही देगा डायरेक्टली, ठीक हो गया। ओके, अच्छा, लास्ट चीज ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होंगे। एनालिसिस की प्रॉब्लम में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होता है ना, ई और आई की वैल्यू, ई की वैल्यू तो आपको फार्मूला पता है, यहां से आप निकाल लेंगे, ठीक है, एफसी ब्रांड पीएसआई में डालें, आपके पास आंसर आ जाएगा पीएसआई में, सिंपल। आई की वैल्यू कैसे आएगी, आई की वैल्यू बीम की भी चाहिए हमें, कॉलम के लिए भी चाहिए, तो लेट्स फर्स्ट लुक एट कॉलम, आई ऑफ द कॉलम। वैसे अगर स्ट्रिक्टली बात की जाए तो रिइंफोर्स कंक्रीट का, जैसे आपने ट्रांसफॉर्म सेक्शन पढ़ा हुआ है ना पीआरसी 1 में, अगर आप एक्यूरेट एनालिसिस करें तो एक्चुअली आपको सेक्शन पहले ट्रांसफॉर्म करके फिर उसको एक इक्विवेलेंट एरिया ऐड करके एक ही मटेरियल में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज फाइंड करनी चाहिए। ये आप आसानी से कर सकते हैं अगर सेक्शन अनक्रैक्ड,
लेकिन अगर सेक्शन क्रैक हो जाए, जैसे कि हमारे पास जब ये वाली लोडिंग यानी ये हम लोडिंग जो लगाने लगे, ये एमयू निकालने लगे ना एट द एंड ऑफ द डे, तो ये तो एक अल्टीमेट स्टेज की लोडिंग होगी ना, तो उस स्टेज पे तो कंक्रीट क्रैक होगा। अब वो क्रैक कंक्रीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बेसिकली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो हम फिर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करते हैं। क्या अप्रोक्सीमेशन करते हैं? कॉलम के केस में कॉलम नॉर्मली क्रैक नहीं होता, आम जो लोडिंग कंडीशन है, सर्विस लोडिंग कंडीशन में बीम क्रैक होता है, लेकिन कॉलम क्रैक नहीं होता। तो हम कॉलम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली ले लेते हैं इक्वल टू आई ग्रॉस। आई ग्रॉस का क्या मतलब है? रीइंफोर्समेंट को बिल्कुल भूल जाएं, जो उसकी बाहर से प्रॉपर्टीज यानी क्रॉस सेक्शन शेप नजर आ रही है उसकी बेस पे आई निकाल दें उसका, ठीक है? जो रेलेवेंट उसका एक्सिस है उसके अबाउट, ठीक है? रेलेवेंट जो उसका एक्सिस है, आप समझ रहे हैं ये बात? जो रेलेवेंट एक्सिस है, यानी अगर मैं आपको ये कॉलम इस तरह से ड्रॉ करके दूं, जिससे मैंने अभी यहां पे ड्रॉ किया था, यहां पे जैसे ये है, अगर ये कॉलम है और ये बीम के साथ इस तरह से कनेक्टेड है, तो इस कॉलम की एक डायमेंशन क्रॉस सेक्शन यही वाली होगी, एक आपको ऊपर से आपको देखेंगे तो अवे फ्रॉम द स्क्रीन या आउट ऑफ द स्क्रीन आपको नजर आएगी। अब अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरह का क्रॉस सेक्शन होगा। ये जो मैंने डायमेंशन ड्रॉ की है ये वही है जो इधर ड्रॉ हुई है, दूसरी वो वाली डायमेंशन है। अब ये जब बेंडिंग होगी इस फ्रेम की, तो ये बेंडिंग इस तरह से होगी कि आप ई टेस्ट पे करना चाहें, सैप पे, वैसे मेरे पास यार रिजल्ट हैं ऑफ मैंने किया हुआ है, मेरे पास पढ़ा हुआ है। जस्ट डोंट वांट टू लाइक लिमिट यू टू दैट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है? आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा, देखिएगा 2D फ्रेम मैंने अगर करना है उसमें मॉडल थोड़ा सा आप खपाएंगे इसमें खुद को, तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक? आपको अल्टीमेटली मैंने आपको गाइड करना है, लेकिन आई वांट यू टू गो डीप एंड एक्सप्लोर द सॉफ्टवेयर, ठीक है? एक जगह पे नहीं आपने लग जाना। कॉलम की आई की मैंने बात कर ली है, आई ग्रॉस के बराबर, और मैंने मोमेंट एक्सिस आई का जो एक्सिस है वो भी आपको बता दिया। बीम की अगर हम बात करें, थोड़ा सा ये इन्वॉल्व है, इसको जरा समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम इस तरह की डिस्कशन हो सकते हैं करते रहें। आई ऑफ द बीम में अगर मैं आपको सामने पहले फिगर ला सकूं, अब बीम जो है उसका आपको पता है, टी बीम वाली सारी कहानी आपको सारी पता है कि इसकी इस तरह से बनता है। अब ये आई कैलकुलेट करने के लिए कितना ये आपने कंसिडर करना है इसके साथ, इसमें 3/4 यानी 75% ऑफ, वैसे तो आपने बीई आप निकालते ना इक्विवेलेंट विड्थ, उसका यानी इस साइड पे जितना आप निकालते हैं ना, इस साइड पे भी होती है प्रोजेक्शन, इस साइड पे भी होती है, बीई जब आप निकालते हैं उस बीई का 50% या 75% हम इफेक्टिव कंसिडर कर सकते हैं व्हेन कैलकुलेटिंग आई वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हुए, ठीक है? जस्ट अ मिनट में अगर उसको देख सकूं एग्जैक्ट, टिपिकल 50 to 75%, ठीक है? यानी अगर मेरे पास ये, मैं आपके सामने ड्रॉ कर लेता हूं यार, समझ आ जाए आपको। ये लेट से मैंने कैलकुलेट कर लिया एक, और ये मेरा पूरा, अच्छा अब ये आपका बीई का बीई तो टोटल यहां से लेके यहां तक है ना टोटल, ये जो प्रोजेक्शन जा रही है इसका 50% या 75%, लेट से हम कहते हैं 50% कंजर्वेटिवली, यहां तक आपने कंसिडर करना है सेक्शन, ठीक है? आई निकालने के लिए, पहले शेप पता होनी चाहिए ना किसी चीज की, फिर उसका सेंट्रॉइड आप निकालेंगे, सेंट्रॉइड निकाल के फिर आप उसका पैरेललिसिस थ्योरम, यू नो ऑल दिस, तो अभी तो आपको समझ आनी चाहिए ना इसकी, तो ये प्रोसेस। अच्छा, इसके बाद इसमें रिडक्शन करनी पड़ती है बीम के लिए। जब अब बीम क्रैक्ड हो तो इसका थंब रूल ये है, क्रैक्ड सेक्शन यानी आई क्रैक जिसको हम कहेंगे, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई अनक्रैक, ठीक है? अगर मैं गलत नहीं लिख रहा इसको, हाँ जी, हाफ ऑफ आई जी, यानी इनिशियली अनक्रैक था तो आई जी से आप निकाल सकते थे बाय इग्नोरिंग रीइंफोर्समेंट कंजर्वेटिवली, लेकिन क्रैक होने के बाद यू कैन टेक इट 50% ऑफ आई जी, 0.5 आई जी। अच्छा, अब क्रैक जो हुआ है वो ये टी सेक्शन क्रैक हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने पहले
बीई निकालना है, बीई का सर्टन पार्ट इफेक्टिव होगा जैसे मैंने यहां डिस्कस किया, फिर उसका सेंट्रॉइड निकालेंगे, फिर उसका आई निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका हाफ लेंगे। इस सारे प्रोसेस को एक अप्रोक्सीमेट मेथड से आप कर सकते हैं। वो अप्रोक्सीमेट मेथड क्या है? ये जो बीम का हैच्ड एरिया है, ये वाला BW इंटू एच, इस रेक्टेंगल का आप आई निकाल दें अबाउट दिस एक्सिस, यानी वो बन जाएगा BW H³/12। ये आप एज इट इज यूज कर दें। इसमें हमने दो चीजें कर दी हैं। हमने T को सेक्शन को यानी फ्लैंजेस को इग्नोर कर लिया, ये हमने वैल्यू कम कर दी, एक तरह से छोटा सेक्शन बना लिया ना, G हटा दिया। लेकिन दूसरी तरफ हमने अब इसके अंदर फर्दर कोई रिडक्शन 50% अब इसका नहीं करेंगे। अब ये क्रैक्ड ही इतने कैलकुलेट, यानी आई क्रैक्ड, अप्रोक्सीमेट वे टू कैलकुलेट आई क्रैक्ड इज, वैसे ये भी अप्रोक्सीमेट ही है लेकिन ये उससे भी ज्यादा अप्रोक्सीमेट, यू कैन सिंपली टेक इट इक्वल टू IG ऑफ द बीम वेब ओनली। ठीक हो गया? अच्छा, अगर तो आपका बीम रेस्ट कर रहा है ऑन कॉलम्स, जैसे अभी ABCD जो फ्रेम था, लेकिन अगर आपका बीम कॉलम पे नहीं रेस्ट कर रहा है, गर्डर्स पे रेस्ट कर रहा है, आप क्या करेंगे? गर्डर की स्टिफनेस थोड़ी कम होती है, बीम कॉलम ज्यादा स्टिफर होता है, फिर क्या करेंगे? फिर इस तरह का मॉडल आप यूज कर सकते हैं। इस तरह का मॉडल ये देखिएगा, ये आपका EFGH फ्लोर बीम है। इस फ्लोर बीम में अब यहां पे कई कॉलम्स नहीं है कि जिनको ये बीम, जिनको ऊपर ये बीम खड़ा हो, यहां पे गर्डर्स रन कर रहे हैं, इन गर्डर्स के ऊपर ये फ्लोर बीम है। अब हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं? अप्रोक्सीमेट तरीका इसका अगेन ये है कि आप जहां जहां भी गर्डर है उसकी जगह पे एक रोलर सपोर्ट डालते जाएं, जैसे ये नजर आ रहा है आपको। एंड वाले को आप हिंज डाल दें। सिर्फ वही बात है कि आल्दो हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं लग रही, बट जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी या स्टेबिलिटी शो करने के लिए लोडिंग इस पे वर्टिकल ही लगनी है। अब इसमें बाकी एनालिसिस ठीक है, इसका मसला नहीं होगा। एक प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम क्या होगी? असल में जो बीम है आपका, असल में यहाँ पे इस जगह पे ये फ्लोर बीम को जो गर्डर इसके साथ मोनोलिथिकली कनेक्टेड है, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक हिंज सपोर्ट की तरह, जैसे एक मैसनरी वॉल पे बीम रख लें और कोई बीच में कनेक्शन ना हो, कोई रेजिस्टेंस टू रोटेशन ना हो, ऐसा नहीं है। इस फिनोमेनन को जरा समझेगा। यहां से आपने ये वाला केस, डिसकंटिन्यूअस एंड इंटीग्रल विद सपोर्ट वेयर सपोर्ट इज अ स्पैंड्रल गर्डर है ना हमारे केस में, तो आप ये -1/24 वाला फैक्टर यूज करके WU/ln² करते हैं। समझ आ गई बात? बाकी सारे एनालिसिस रिजल्ट्स यहां से, पॉजिटिव मोमेंट, नेगेटिव मोमेंट सारा, लेकिन ये जो ये वाला एंड और ये वाला एंड, इनका रिजल्ट आपने टेबल से, बाकी टेबल से नहीं उठाना, बाकी एक्चुअल एनालिसिस। समझ आ गई ये बात? अब आपने एनालिसिस इसका खुद करना है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि इसमें क्या हुआ है, और आपने जो करना है वो क्या करना है, वो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं बस। मैं बीच में मैं नहीं जाऊंगा कि आपने कैसे इसको करना है। ये वही एग्जांपल 5-2 अब स्ट्रक्चरल एनालिसिस से किए, वही एग्जांपल अब हम कंपैरिजन करेंगे। आल्दो इस केस में हमें 5-1 जो किया है उस डेटा के लिए लिमिटेशंस वर वैलिड। मैंने कहा जैसे स्ट्रक्चरल एनालिसिस में किसी की केस में भी आप यूज कर सकते हैं, तो लेट्स डू इट बाय स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड देन सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजल्ट्स ऑफ मोमेंट कोएफिशिएंट, ऐसे मोमेंट कोएफिशिएंट्स एंड एन एक्यूरेट स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अच्छा, लेट्स सी ABCD के लिए आपका एनालिसिस मॉडल जो पहले मैंने आपको दिखाया, ये वाला मॉडल, ये मॉडल आ गया। अब डिफरेंट सेक्शंस को डिजाइन कर रहे हैं, उनकी लोडिंग का प्रोसीजर, डेड लोड को एस्टेब्लिश करना, लाइव लोड को, वही प्रोसीजर होगा जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं।
लेकिन इस केस में आप उनका 1.2 डेड और 1.6 एडअप करके WU नहीं निकालेंगे। क्यों? आपका डेड लोड हर वक्त लगे रहेगा सारे स्पैन्स पे, लाइव लोड सिर्फ वहां लगाएंगे जहां से वो मैक्सिमम मोमेंट उस पर्टिकुलर सेक्शन जिसके लिए डिजाइन कर रहे हैं वहां प्रोड्यूस कर सके। अब आपके पास अलग से 1.2 डेड और अलग से 1.6 लाइव कैलकुलेटेड है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? नहीं, इसकी बात कर रहा हूं ना यार। ये आपने इकट्ठा कैलकुलेट करके कर लिया ना, ये आंसर, एक आंसर आपको चाहिए था वो निकाल लिया। यहां आप क्या करेंगे, ये अलग से कैलकुलेट करना है और ये अलग से कैलकुलेट करके रखना है। अच्छा, हर सेक्शन के लिए। अच्छा, अब वो आपने कर लिया। अब आप ऐसे करेंगे, नेगेटिव मोमेंट एट ए और पॉजिटिव मोमेंट। अब ये पहला वाला केस है जिसमें कॉलम्स थे, ठीक है, फ्लोर ABCD वाला फ्लोर बी में। अब इस केस में ये आप एक लोडिंग पैटर्न अप्लाई कर लेंगे। इस लोडिंग पैटर्न में आपने इसको लोड किया है, लेंगे यहां लाइव लोड लगाया, डेड लोड थ्रू आउट नजर आ रहा है आपको, लाइव लोड आपको यहां नजर आ रहा है, यहां नहीं नजर आ रहा है, यहां नजर आ रहा है। इससे आपके पास अब आपने एक पैटर्न लोडिंग अप्लाई कर दिया। इस पैटर्न लोडिंग से आपको पास कौन कौन से रिजल्ट्स आएंगे, AB मेंबर में, इसमें यहां पे नेगेटिव मोमेंट और इसके अंदर मिड स्पैन, ये दो आपके पास आ जाएंगे। पहले भी इसी तरह से अलग, ये इनको इकट्ठा हमने डील किया था ना, क्योंकि इनका एक ही पैटर्न लोडिंग था। अच्छा, ये यहाँ के जो रिजल्ट्स होंगे वो आप सिर्फ, यानी यहाँ सारे में सारा एनालिसिस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। ओनली 2 थिंग्स, मोमेंट एट B, मोमेंट एट A, एज ऑफ द सपोर्ट, कॉलम के ऊपर, कॉलम के एज के ऊपर, और यहाँ मिड स्पैन मोमेंट, ये हमें दो यहाँ से रिक्वायर्ड है। ये एनालिसिस कर लेने के बाद आपने नेक्स्ट आपने ये वाला लोड करना है, ये तो अनलोडेड छोड़ने हैं, सिर्फ लाइव लोड के साथ किया जा सकता है, डेड लोड तो थ्रू आउट लगा रहेगा। इससे आपके पास BC स्पैन में मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट आ जाएगा। थर्ड, नेगेटिव मोमेंट एट B के लिए ये दोनों पे लाइव लोड लगा रहेगा, इस पे लाइव लोड नहीं लगेगा। इसका एनालिसिस करेंगे आपको अगेन इस तरफ कीप इन माइंड, B के कॉलम B जो है उसके फेस पे जो मोमेंट है वो आपने यहां से लेना है, और आपने इस तरह का एक टेबल के अंदर एंटर कर लेना है उस रिजल्ट को। ये जो है ना, वैसे ही आप हाथ से कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, बिलीव में इतना मुश्किल ये नहीं है। आप 3 तो स्पैन है इस बीम के, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज कर लें, आसान। स्लोप डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहे वो यूज कर लें, ठीक है। आपको पता नहीं ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस है ना प्रीरेक्विजिट इसका, तो वो इस वजह से प्रीरेक्विजिट, जिसको वो नहीं आता वो ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपने हाथ से करना है, और फिर सॉफ्टवेयर में तो आपने अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है, लेकिन एकदम 3 मेथड से आपने करना है इसको। ACA कोफिशिएंट मेथड से तो मैंने कर दिया, आप हुआ यहाँ पे रिजल्ट्स दूसरे भी गिवन है, रिजल्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ से, लेकिन आपने प्रोसेस करना है सारा। ACA मोमेंट कोफिशिएंट से कर लिया, सेकंड आप सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं, थर्ड वो सॉफ्टवेयर से रिजल्ट्स आए थोड़ा सा यार, वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो इतने रजिस्टर भरे हुए हैं, उस एक दफा तो एक प्रॉब्लम जिंदगी में करके देख लो ना, कि जिसको कभी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये हाथ से कर लेने को इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, बिलीव में। आपको वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स चाहिए होंगे, 2 आप 4-5 वो करेंगे, साइकिल्स कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। इतना लंबा प्रोसेस नहीं है ये, यही काम आपने उसके लिए करना है जो EFGH मैंने आपको दिखाया था, अगेन लोडिंग पैटर्न्स। तो ये हमने आज कंप्लीट कवर कर लिया है। आगे पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूं कि आगे हमने पढ़ना क्या है, थोड़ा सा आपको ओवरऑल पिक्चर पता चल जाए। अभी तक हमने सिर्फ MU निकालना समझा, एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट जब हम आएंगे इंशाल्लाह वी विल डिस्कस कि अब ये MU आ गया, इस MU के अगेंस्ट सेक्शन कैसे चूज करना, ठीक। इसमें हम ये सारे डिस्कशन करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आज वाला टॉपिक अगर आपको बिलीव में नहीं आ रहा तो आप देखें ना, आप खुद समझें इस बात को। अगर मैं आपको एक डिजाइन करने की, ये कंटिन्यूस बीम आपको दे दूं कि ये डिजाइन करना है, आपको उसका एनालिसिस ही ना आए, डिजाइन तो स्टार्ट ही नहीं होगा ना। अच्छा, ये एक तो आपने इसको करना है, दूसरा आपने इसका मसला मुझे सिर्फ ये कि ये तो इसके तो रिजल्ट्स भी उधर गिवन है, ये तो आप बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है। आई वांट यू टू सॉल्व ये 5-7 एंड 5-8, और साथ में ये 5-9, एक सेकंड लेट मी सी, 5-10, 5-11, 5-12। मैं आपको बताता हूँ ना क्या करना है।
starting from 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और that's it. अच्छा, ये जो है ना आपका, डरना नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये 5-7, ठीक है। प्लान थोड़ा बड़ा सा लग रहा है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। आपने करना है इसको। 5-7 में आपने एसी मोमेंट कोएफिशिएंट्स यूज कर रहे हैं। ये आपने 5-8 में उसी प्रॉब्लम को रिपीट करना यूजिंग स्ट्रक्चरल एनालिसिस सॉफ्टवेयर। इसमें आप हाथ से ना कीजिएगा, बस इसमें सॉफ्टवेयर और एसी कोएफिशिएंट बस दो से कीजिएगा। और फिर आपने 5-9 में ऊपर वाला जो था दैट वाज फॉर A2 B2, लेट मी चेक, A2 और B2, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है ना इसके लिए था, कॉलम लाइन 2 के लिए, ये वाला जो है। नेक्स्ट आपने इसको यहां आपने करना है 5-9 में वही 7 और 8 यानी कोएफिशिएंट मेथड और स्ट्रक्चरल एनालिसिस सॉफ्टवेयर से कॉलम लाइन 1 के लिए, यानी इस लाइन के लिए कॉलम लाइन 1 ये जो है। फिर आपने नेक्स्ट में क्या करना है, इसको रिपीट इट फॉर बीम MNOP, MNOP, ये देखिएगा MNOP, ये इंटरमीडिएट फ्लोर बीम है, ठीक है। बाकी जो दो थे वो कॉलम्स के ऊपर लाई करते थे। और फिर नेक्स्ट क्या है, फॉर द वन वे स्लैब स्ट्रिप फिगर 5-7 में, ठीक है। हाँ, ये वन वे स्लैब है, ये इस तरफ स्पैन कर रहा है शॉर्टर डायरेक्शन में, और जिस तरह बीम का एनालिसिस है वही स्पैन का स्लैब का भी वही प्रोसीजर है। यूनिट विड्थ आप कंसिडर 1 फुट की विड्थ कंसिडर करेंगे, ठीक है। आपने A B C D E F G H I सारे पॉइंट्स पे मोमेंट्स निकालने, ठीक है। ये दो वीक्स के मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, 2 वीक्स में आपने इसको करना है। नहीं, एग्जाम्पल को पहले करेंगे ना, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ, एग्जाम्पल जो है वो आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर से करके देना है मुझे। वहां पे तो ये हाथ यहाँ पे कर लिया ना, कोएफिशिएंट से क्लास में कर लिया। एग्जाम्पल सिर्फ सॉफ्टवेयर से करनी है, बाकी यार ये असाइनमेंट बनानी है आपने। यार हर चीज पेपर, यार अभी तो क्लास शुरू की है यार, कुछ लर्निंग पॉइंट से भी देखा लाए इसको। क्या पता मैं आपको सॉफ्टवेयर से, मैं आपको ये कह दूं आपने कैसे डाटा एंटर किया था, आप मुझे प्रोसीजर लिखने दो, थ्योरी लिखने बस, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि आपने किया या नहीं किया। कुछ समझ रहे आप? मैंने तो बस ये देख रहे ना आपने किया उसको ये नहीं किया, मुझे ये तो कंसर्न नहीं है कि आप, ठीक है। तो ये सारे आसान है, आप कर सकते हैं इसको, इतना मुश्किल नहीं है। आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कर सकता हूँ इसको, ठीक है जी।